طریقہ اور اس جلوس اعضا میں بھاری تعداد میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ عزاداران امام حسین السلام کے عزادار جو تھے وہ کافی غمگین بھی تھے اور ان کے چہروں پر کربلا کی یاد کے آثار بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ قوبی کر کے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے ماتم کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ عزاداروں کا کہنا ہے کہ جلوس اعضا برآمد کرنے کا مقصد کربلا کو دنیا تک پہنچا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آج سے 1400 برس قبل میدان کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح مصائب ڈھائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور باطل میں کس طرح فرق کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بیان کرتی ہے کہ آپ کتنے بھی مشکلات میں ہوں باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا۔ الحمدللہ آج دوسرے سال بھی، پچھلے سال یہ جلوس برآمد ہوا یہاں سے، اس سال بھی یہ جلوس برآمد ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جمع غفیر ہے تو سب عزادار چل رہے ہیں، بس امام حسین علیہ السلام کا پیغام دینے کے لیے کہ ہم انسانوں کے دوست ہیں اور محبین انسان ہیں، انسانیت کے لیے یہ عزاداری ہے، بس اس کے علاوہ جس طرح یہ 8 جلوس نکل رہا ہے اسی طرح سے 10ویں محرم کی بھی گورنمنٹ اجازت دے۔ ہم شکریہ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اور ان کے شکریہ ادا جن نے اس کے لیے پہل کی، صدیوں سے پہل کی ہے۔ اور ہاں اب یہ دوسرا سال ہے اس کا، لیکن اس سے اپنی ایک تواریخ ہے، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اس کی اپنی تواریخ ہے۔ ہم چھوٹے تھے 30 سال 35 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ نکلتے تھے، وہ ہمیں پوری اچھی طرح سے یاد ہے، ذہن نشین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو صحیح میسیج ہے وہ ہر ایک انسان تک پہنچے، کیونکہ اس میں جو میسیج ہے آزاداری کی میسیج جو امام حسین علیہ السلام جس نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اس حسین علیہ السلام نے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ پروان چڑھا اور اس گھرانے سے اس نے تربیت حاصل کی جو رحمت للعالمین تھے، اس نے حسین علیہ السلام نے ایسی عظیم شہادت دی جو ہر ایک انسان کے لیے ایک بے مثال نمونہ ثابت رہی، کیونکہ اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو کس طرح سے اپنی زندگی گزرنا چاہے اور کبھی بھی وقت کی طاقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہے۔ یہ جلوس جو ہے پہلا جلوس جو گرو بازار سے نکلا ہے، اس وقت یہ جلوس ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، مجھے آپ بات کرنے دیجئے، یہ 1925 میں پہلا جلوس نکلا ہے۔ 1925 یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ پرمیشن یہ جلوس جو ہے 1933 میں نکلا ہے، یعنی کہ اس وقت یہاں کے مہاراجہ ہوا کرتے تھے، تو اس کی آج کی ہسٹری نہیں ہے، اس کی اپنی تواریخ ہے۔ یعنی کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ہندوستان اس وقت انگریزوں کا غلام تھا۔ جب سے یہ جلوس برآمد ہو رہا تھا ہمارے گرو بازار سے، اب اس کے راستے بدل گئے، دنیا بدل گئی، ہم کہاں سے کہاں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے رپورٹر سروش، ہمیں بتائیں آپ کہ کہاں کہاں یہ جلوس نکل رہے ہیں یا نکلے ہیں، چونکہ کئی جگہوں پر ابھی حال کے دنوں میں دیکھا جا رہا تھا، حال کے برسوں میں کہ جلوس پر پابندیاں تھیں، لیکن پچھلے سال سے کچھ امیدیں بڑی ہیں۔ جی سروش۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ وصال۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہم اس وقت آئیکونک ایم اے روڈ جو لال چوک کے پاس ہے وہاں پہ کھڑے ہیں، ریزیڈنسی روڈ کے پاس، اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی عزادار جو ہے وہ مختلف جگہوں سے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ سری نگر میں آج آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، یہاں پہ جو 8واں محرم ہوتا ہے اس کا پروسیشن جو ہے پچھلے سال لگ بھگ 30-35 سال بعد یہ اپنے ٹریڈیشنل روٹ سے نکلا تھا جو گرو بازار سے ڈل گیٹ ہے، اور اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ انٹرسیکشن ہے گرو بازار اور ڈل گیٹ کے بیچ کا۔ حالانکہ کافی زیادہ اسپیکولیشنز رہی پہلے وصال آپ کو بتائیں کہ بھلے اس بار پرمیشن ملے گی نہیں ملے گی، آخر موقع تک سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگ پایا، اور کل دوپہر میں ہی پھر خبر آئی کہ جو 8واں محرم ہے جو اس کا پروسیشن نکلے گا اپنے ٹریڈیشنل روٹ سے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے مزید اگر آپ کو بتا دوں ٹریفک کی بات کریں تو کیونکہ کافی زیادہ ہیوی اور کنجسٹڈ ٹریفک رہتا ہے پرٹیکولرلی اس روڈ پہ، کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ تمام شہر کو کنیکٹ کرتا ہے، تو ہر ایک گاڑی کو اس راستے سے گزر
गुजर के ही जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो मद्देनजर रखते हुए भी कल शाम में ही ट्रैफिक पुलिस की भी एडवाइजरी आई थी, और जितना भी आज ट्रैफिक है, क्योंकि आपको बता दूं आज मंडे है, वीकडे भी है, तो ट्रैफिक जो है वो रेसिडेंसी रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा, आजादार न सिर्फ श्रीनगर से इस वक्त कश्मीर के तमाम कोनों से आए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है। काफी लोग जो है इस वक्त हमने देखा बडगाम बारामूला से यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग जो है साउथ कश्मीर से पहुंचे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, देखिए क्योंकि सेंसिटिव मैटर रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा पिछले साल 35 साल बाद ये प्रोसेशन अलाउ हुआ, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स भी जो है वो लिए गए थे। आप देख रहे होंगे इस वक्त भी जो पुलिस है वो पैरेलल रूट्स पे बाज़ाबिता अपना कावल कार्ड लेके आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले विशाल, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हुसैन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमने देखा पिछले साल 35 साल बाद ऑलमोस्ट ये प्रोसेशन जो है अपनी ट्रेडिशनल रूट से चला था, और इस बार गुरु बाजार से डलगेट तक फिर भी कहीं ना कहीं जब हमने डीसी साहब से भी बात की परसों शाम तक कोई श्योरिटी नहीं थी। आज हम फिर देख रहे हैं कहीं ना कहीं नॉर्मल सी प्रिवेल हो रही है। दूसरे साल लगातार जो अपना ट्रेडिशनल रूट है वहां से आजादार निकल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक खूबसूरत शहर से। बदला रही है आज शोहरत हुसैन की, हर जगह हर सुन्नत है हुकूमत हुसैन की, गमे अश्क गमे की, गमे अश्क की। कोई नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अश्क गमे हुसैन की कीमत न पूछिए, जन्नत में घर बनाएगी चाहत हुसैन की। तो जिस तरह आप बोल रहे थे कि बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा नज़ारा, ऐसा ये पुरशान पुरजोश जुलूस नजर आता है, तो हक यह है कि मैं जब स्कूल बच्चा था, कि स्कूल जाता था, तो मैं जुलूस में शिरकत करता था। लेकिन आज मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 30 to 40 ईयर्स के बाद तो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा, वही जोश, वही जज्बा और वही शान शौकत इस जुलूस में नजर आ रही है। तो लोग ऑल ओवर, जो मेरे ख्याल से कश्मीर के कोने कोने से लोग आज आ रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो देखेंगे हर सहूलियत फराहम रखी गई है आज़ादारों के लिए। ट्रैफिक का निज़ाम देखें तो मशरूबात का इंतज़ाम देखें, जो भी सरकारी इदारे हैं तो सब एकदम कमर बस्ता है, तो बहुत मशहूर है। तो बस यही चाहेंगे कि इसी तरह ये जुलूस रवां दवा रहे, पुरअमन रहे, और जो मैसेज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि हम बातिल और जालिम कुव्वतों के खिलाफ जो भी हैं तो कमर बस्ता हो जाए और उनके खिलाफ कयाम करें। तो ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से मुख्तलिफ मैसेजेस हैं यहाँ पे, पीसफुल मैसेजेस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इमाम हुसैन की मैसेज थी कि कहीं ना कहीं जो जंग है, ये अपने अंदर की जंग जो है उसको लेके बात हुई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, देखिए जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज़ादार जो है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुंचे हैं, और कई सारे ऐसे विशाल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं जिनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि कारवां जो है, काफिला जो है काफी ज्यादा बड़ा है, और मुख्तलिफ जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो जुड़ते जा रहे हैं आज़ादारों के साथ और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जिस भी तरीके से आगे आगे डेवलपमेंट होती रहेगी उस तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जी विशाल। बिल्कुल, तो कहना यही था सभी का कि इसमें जो जोश और जो जज्बा है तो कोई कमी नहीं है। जैसे लोग बचपन में जुलूस में शामिल हुआ करते थे, वो अब भी जुलूस में शामिल हुआ करते हैं। और दरअसल इसके पीछे मकसद यही है कि करबला की उस अजीम कुर्बानी को याद किया जाए, और उस अजीम कुर्बानी के पीछे जो सोच थी, जो फिक्र थी, जो हक के बातिल से टकराने की सोच थी और बातिल के खिलाफ हक के न झुकने की जो सोच थी, उस सोच को जिंदा रखा जाए। और वो हर दौर में अलग अलग तौर तरीके से वो चीज़ें सामने आती है, ऐसे हालात सामने आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इश्क़े गमे हुसैन की कीमत न पूछिए, इश्क़े गमे हुसैन की कीमत ना पूछिए, जन्नत में घर दिलाएगी चाहत हुसैन की। शायद वो ये कहना चाह रहे थे। सरोश, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या इन जुलूसों में हम ख़वातीन को भी देखते हैं कि वो सड़कों पर आती हैं और ये जो गमे हुसैन है, या जो मकसद हुसैन है, या जो पैगाम हुसैन है, उसे आम करने की कोशिशों में वो भी क्या सरगर्दा रहती हैं? देखिए, अगर हम ख्वातीन की बात कर लें तो कहीं ना कहीं ख्वातीन आपको इस तरीके से रास्ते पर नहीं देखेंगे। हाँ, अगर आप इमाम बारहों की बात करें तो मुख्तलिफ इमाम बारहों में जो हमारे ख्वातीन हैं वो पहुँचती हैं,
लेकिन हाँ इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कुछ ख्वातीन होंगी जिनको आप देखेंगे यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो भी हमारा ख्वातीन का एक तबका है वो अभी इमाम बाड़ा में ही होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तैयारियां करनी होती है। आपको खुद भी पता होगा कि एक सिस्टमेटिक वे में हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि जब हमने कुछ आज़ादारों से आज बात भी की सुबह सुबह, उनका यही कहना था कि पिछले साल ऑल ऑफ अ सडन जब ये डिक्लेयर हुआ कि 8 मुहर्रम की परमिशन दी जाएगी 35 साल बाद, तो हमारी तैयारियां उस तरीके की नहीं थी, उस नौयत की नहीं थी। अब इस बार कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो ज्यादा पुख्ता है, जो इस बार हमें ग्राउंड पे भी दिख रही है, क्योंकि पिछले साल कहीं ना कहीं एक क्योस था, एक डर का माहौल था 35 साल बाद जब ये निकल रहा था प्रोसेशन, यहाँ से अनसर्टेनिटी थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जब लगातार अब दूसरे साल 8वें मुहर्रम का प्रोसेशन अपनी ट्रेडिशनल रूट गुरु बाजार से डलगेट तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है, अमन और शांति का मैसेज भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो जज्बा है लोगों में वो देखते ही बन रहा है। कई सारे लोग हैं जो पानी की बोतलें लेके जा रहे हैं, आप देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे एम्बुलेंसेज रखी गई है, और उसके मजीद जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि बेसिक फैसिलिटीज जो है सैनिटेशन की वो प्रोवाइड की गई है, जो पिछले साल नहीं थी। तो इस बार कुल मिला के अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास चैलेंज इसलिए भी था, आपने देखा इलेक्शन खत्म होते ही फिर अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद फिर आज मुहर्रम की तैयारियां बार बार हमने देखा पिछले 1.5-2 हफ्ते से जितनी भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, भले ही वो डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी हुए, डीसी बिलाल मोहिद्दीन हुए, एसएमसी के कमिश्नर मोहम्मद उवैस हुए, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, इमाम बाड़ों में जा रहे थे, लोगों के मुतालबे सुन रहे थे। लोगों का यही कहना था कि जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की है। आप जितने भी एशिया बरादरी के इलाके देखें, आज उनमें 24 घंटे फिलहाल लाइट है। जहाँ पे आज पूरे कश्मीर में कर्टलमेंट चल रही है, वहाँ पर आज कहीं ना कहीं इन एरियाज में लाइट रखी गई है, सैनिटेशन का खास ख्याल रखा गया है। तो चैलेंजिंग भी था, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, इलेक्शंस हाल ही हाल खत्म हुए, सिक्योरिटी मेजर्स भी देखते थे। तो इस नौयत के देखिए विशाल, आप समझेंगे हम समझेंगे, लेकिन हमारे देखने वाले नाजरीनों को कह दूं कि कहीं ना कहीं उनके लिए शायद ये आम हो, क्योंकि बाहर ऐसा आम होता है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में अपने ट्रेडिशनल रूट से इस तरीके से लोगों का निकलना अपनी कहानी खुद ही बयां करता है, एक पॉजिटिव मैसेज, एक पीसफुल मैसेज देता है ये। जी जी विशाल, बिल्कुल। और ये जो मिट्टी इस वक्त आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में, मेरा ख्याल है ये सरोज इसके बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को, कि इस मिट्टी शायद ये करबला की मिट्टी है, तो ये किस तरह से ये वहाँ लाई जाती है और इसके पीछे क्या सोच है? जी ये खाकी करबला है, ये हम लगाते हैं तबरुक के लिए माथे पे, तो इससे हमको शिफा मिलती है। ये मिट्टी कहीं ना कहीं करबला से आती है? करबला की नहीं, लेकिन हम इसमें नियत करते हैं कि करबला की है। अच्छा, हाँ, नियत से कोई खास वजह होती है लगाने? इससे जो बीमार होते हैं वो शिफाई के लिए लेते हैं, और जो जिस किसी को भी मुसीबत हो वो इसको लेते हैं, इससे शिफा मिलती है उनको। तो देखें आप किस तरीके से मुख्तलिफ जो यहाँ पे है रिचुअल्स जो हैं, ट्रेडिशंस जो है वो होते हैं यहाँ पे। मिट्टी जो है, हालांकि जिस तरीके से अभी आप फरमा रहे थे करबला से तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि नीयत वही रखी है हमने, इरादा जो है वो बिल्कुल वही रखा हुआ है हमने, तो कहीं ना कहीं शिफा है इस मिट्टी में, तो इसलिए जो मिट्टी है ये लगा रहे हैं। देख सकते हैं मुख्तलिफ आज़ादार जो हैं इस वक्त पहुंचे हैं, थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं अब जो ही दिन बढ़ता हुआ जाएगा और भी आज़ादार जो है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये भीड़ जो है ये और ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी, और पुरअमन तरीके से अभी कुछ और लोगों से बात हो सकती है, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो जो इस वक्त इस जुलूस में शामिल हैं वो पैगाम क्या देना चाहते हैं, खुद उनके जहनों में क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटी से भी जुड़े हुए लोग हैं। आप नाम बताइए अपना। जी नाम बताइए आप। जी मेरा नाम असर अली है। किस डिपार्टमेंट से आप लोग? जी पीपल डेवलपमेंट ट्रस्ट से। अच्छा, ट्रस्ट से हैं आप। तो ये बताइए, हमने देखा कि पिछले साल भी यहाँ पे इस तरीके से जो प्रोसेशन है चला था, इस बार थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, श्योर नहीं था पहले, तो किस तरीके की तैयारियां हैं अगर हम आपकी तरफ से भी बात करें तो, और पैगाम क्या रहेगा? नहीं, अच्छी तरीके से तैयारी है, लोग आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी अच्छी सहूलियत रखी है, मेडिकल वाले ने भी, म्यूनसिपलिटी वाले भी, रजाकार बहुत है यहाँ, अच्छी तरीके से काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत खुश है
हमारी एनजीओ भी यहाँ है, बहुत बढ़िया, कि हमारे चेयरमैन साहब बशीर अहमद साहब भी यहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ आज़ादार हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप एक मिनट आप रुक जाइएगा, मैं कोशिश करता हूँ। जी सरोज जी, आप नाम बताएं। जी, शेख फिरदौस अली, चेयरमैन रहमतुल्लाह आलम फाउंडेशन। अच्छा, ये बताइए, हमने देखा कि पिछले साल भी यहाँ पर करीबन 35 साल बाद यहाँ से प्रोसेशन हुआ था। इस बार कुछ श्योर नहीं था, लेकिन फाइनली गो अहेड मिला। किस तरीके की तैयारियां रही, क्या पैगाम रहेगा आपका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखिए, इसको रोकना पहले ही बहुत बड़ा जुल्म था पूरी आलमी इंसानियत के लिए कि जब ये इतने सालों से बंद था। कि पैगाम आलमी इंसानियत के लिए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजात का बाइस है। जैसे कश्ती नूह की तरह वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इजाज़त दी है वो सी डिसिप्लिन से हो रहा है। पिछले साल तितर बितर थोड़ा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा कवर रहे हमारे साथ, यहाँ तक कि हमारा टाइम भी ज्यादा हुआ था, फिर भी उसे संभाला। बोलने का मकसद ये है कि ये जुलूस रोकना, आप पहले से देख रहे हैं कि कितने इस वक्त इंसानियत मर रही है, दम तोड़ रही है, आखिरी सिस्कियों में है। ये हुसैनियत यही है कि पूरे गैर मुस्लिमों ये भी देखो कि हुसैन कौन है। हुसैन ये है कि मजलूमीन के लिए हक और बातिल की लड़ाई है। हम उन्होंने खून देकर अपने 6 महीने के बच्चे तक कोई कुर्बान किया। ये कि सरोज, यही पैगाम है, हक और बातिल की तकरार हमेशा से होती आई हो और इसमें हक के साथ डटे रहना है।